Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 8. Welcome back from your summer break. I hope you have enjoyed your summer break and you all are fine and enjoying good health. In our previous lectures, we were doing chapter 2, and name of the chapter was computer hardware, and we discussed different storage devices that are part of your computer or that can be attached to the computer. And we also learned that there are basically two types of storage devices that can be part of a computer: primary storage and secondary storage. We also look around their examples and their functions as well, right? We also discussed processing device, which is CPU, central processing unit, which is also brain of the computer. We discussed importance of CPU. We discussed different functions that are performed by the CPU, and we also learned about two basic units of CPU, that is ALU and CU, right? And the second part of the computer system is software, and in your previous classes you also learned definition and different types of software, that is system software and application software. The chapter that we are going to start is operating system, which is one of the example of system software. And you can see in this hierarchical diagram that software is divided into two types: system software and application software. And operating system that we are going to discuss in chapter 3 is one of the category, or we can say example, of system software. In your previous classes you also learn that what is a software. Software is a set of instructions or set of programs which are given to the computer to solve some problem, and these instructions and these programs are written by using a computer language. Just like if we want to give some instruction to someone, we have to write it in some language. ठीक है, जैसे अगर हमने किसी को उर्दू में इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम उसको उर्दू लैंग्वेज में यूज़ करके लिखेंगे या बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने इंग्लिश में किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम उसको इंग्लिश के रूल्स और रेगुलेशंस को यूज़ करके उस इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे या हम उसको बोलेंगे। बिल्कुल इस तरह से कंप्यूटर को जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके लिखते हैं ताकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर सके और उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। आपने 6 और 7 क्लास से जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो आपने दोनों पढ़ी हैं, उनकी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उनकी आपने एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं। फॉर योर नॉलेज यहाँ पे मैंने रिवीजन के तौर पर जो है उनकी डेफिनेशंस जो है वो लिस्ट डाउन की हैं। व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. General purpose means which is used to solve every type of task or many type of task is known as system software. Or we can say software which is used to control all the activities which are happening on the computer is system software. There are variety of system software, different types of software which can be called as system software. For example, operating system, which we are going to discuss today in detail. An example of the operating system is Windows. Second कैटेगरी और सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है किस लिए यूज़ होते हैं, कि वो इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, लाइक उर्दू में या इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करने के लिए उस लैंग्वेज में जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है. एंड कंपाइलर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. एंड देन थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है. और यूटिलिटी प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे पेंट है आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद, या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, या जो हम हार्डवेयर की जो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, या हम जो डेस्कटॉप की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं,
हार्डवेयर की सेटिंग का मतलब हम कीबोर्ड या माउस या और इस तरह की प्रिंटर की जो सेटिंग्स चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी विंडोज़ के अंदर ही कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें अलाउ करती हैं कि हम कीबोर्ड या माउस या प्रिंटर की सेटिंग्स को चेंज कर सकें, तो हम उनको यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज प्रोग्राम्स विच आर यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क, ऐसा टास्क जो किसी यूज़र की इंडिविजुअल नीड होती है. जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है तो उसके लिए वो पावर पॉइंट यूज़ करेगा. ठीक है, और अगर किसी यूज़र ने जो है शीट बनानी है, रिज़ल्ट शीट बनानी है, तो उसके लिए वो MS एक्सेल या स्प्रेड शीट यूज़ करेगा. ठीक है, इसी तरह से अगर किसी ने कोई लेटर लिखना है या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई असाइनमेंट बनानी है, तो उसके लिए वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा वो कौन सा होगा, MS वर्ड, या जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. और आपने ये तमाम जो है उस 7th क्लास के अंदर जो है इनको गो थ्रू किया हुआ है. कुछ आपने 6th क्लास के अंदर गो थ्रू किया हुआ है और कुछ आपने 7th क्लास के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लर्न किए हुए हैं. ठीक है, और इस तरह से अगर किसी यूज़र ने जो है पेंटिंग्स बनानी है, पेंटिंग्स को एडिट करना है या ग्राफिक को एडिट करना है, तो उसके लिए वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, जिसकी एग्जांपल क्या है, फोटोशॉप. इट मीन्स कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूज़र की पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नीड को पूरा कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑन द अदर हैंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं किसी सिस्टम को रन करने के लिए, और जिनके बगैर कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता या रन नहीं किया जा सकता. An operating system is one of the example of or category of system software. So operating system is main software which is compulsory for the computer to work. ठीक है, और आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो 7th क्लास के अंदर जो है वो लर्न की हुई है. एंड इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑल द बेसिक टास्क which are a user perform on the computer. अब बेसिक टास्क के अंदर सिस्टम को टर्न ऑन करना हो सकता है, उसको रीस्टार्ट करना हो सकता है, या फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर जो है फाइल्स को रीनेम करना, कॉपी करना, या उनको डिलीट करना हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना हो सकता है. दिस ऑल आर बेसिक टास्क विच आर परफॉर्म बाय यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो we say that is a most important program that run on your computer system. ठीक है, और इसके अलावा आप जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं, जितनी भी जो ऐप्स रन करते हैं, चाहे वो MS वर्ड है, MS एक्सेल है या MS पावर पॉइंट है, दे कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं कर सकेंगे. एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. वन ऑफ द फेमस एग्ज़ाम्पल्स आर विंडोज़, जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर. दैन यूनिक्स इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनक्स इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा एप्पल कंपनी या एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए, एप्पल डिवाइसेस के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है, जो हमारे इंटेल के कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर नॉर्मली हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं. आपने 7th क्लास के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस भी लर्न किए थे. ठीक है, और यहाँ भी रिवीजन के लिए मैंने कुछ उनमें से पर्पस जो है वो लिस्ट डाउन किए हुए हैं. वन ऑफ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दैट इट मेक्स आवर कंप्यूटिंग और द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वेरी ईजी. इट मीन्स कि अगर कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमें उसको ऑपरेट करना या उसके ऊपर काम करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. द सेकेंड पर्पस of an operating system can be that we cannot communicate with the computer, or we cannot give instruction to the computer without the presence of operating system. And another purpose is that
it also manages all the softwares and all the hardware which is part of your computer. मैनेज करने का मतलब ये है कि लेट्स सी अगर मैं कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रही हूँ या मैं यूएसबी से कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर सेव कर रही हूँ, तो उसको कंप्यूटर में कहाँ सेव करना है, ठीक है, इट विल ऑल बी मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मीन्स कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज कर रहा होता है. इसके अलावा जब मैं इंस्टॉल करती हूँ कहाँ इंस्टॉल करना है, और जब मैं इसको रन करती हूँ तो उसको रन करने के लिए कहाँ ओपन करना है, ठीक है. तो दिस ऑल मैनेजमेंट इज़ हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Another important task of an operating system या उसका टास्क भी कह लिया जाए, वो ये होता है कि वो हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सेट कर सकें, ताकि कोई और इलीगल पर्सन या अनऑथराइज पर्सन जो है हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है. और इट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है. और अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड नहीं लगा सकते, और कोई भी आपका डेटा जो है वो स्टील कर सकता है या आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है. तो these are some of the basic purpose of an operating system that you learn in your previous class. So we can say that the main purpose of an operating system is to provide the way of communication, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, ठीक है. इंटरफेस क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ या कंप्यूटर के साथ अगर हम कह लें, ठीक है, बिकॉज कंप्यूटर इज कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर and software both, right. In this diagram you can see that operating system is between the application and hardware. It is a bridge, or it acts like an interface or bridge between the application. और application कौन रन कर रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर? यूज़र, ठीक है. वो यूज़र आप हो सकते हो, वो यूज़र मैं हो सकती हूँ, वो मेरी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, ठीक है. वो यूज़र है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर को यूज़ कर रही है और वो कोई उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर रही है. लेकिन उस एप्लीकेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हार्डवेयर तक कौन पहुँचा रहा है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट्स सी, अगर मैं कोई चीज़ डाउनलोड कर रही हूँ तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर या मेमोरी जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर उसमें कहाँ स्टोर होगी, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. या अगर मैं कोई चीज़ डिलीट कर रही हूँ तो मैं चीज़ कहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन से पार्ट से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, हार्ड डिस्क में से कहाँ से डिलीट कर रही हूँ, इट विल बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस और एज ए गेटवे बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, and it is the main purpose of an operating system. Next, what we will learn or what we will study in class 8, हम जो हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस लर्न करेंगे या बेसिक कहना चाहिए टास्क जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है. एज विंडोज़ इज़ यूज्ड एज मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम विंडोज़ को यूज़ करके डिफरेंट जो है बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है. हम इसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे. देन नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल ए सॉफ्टवेयर, ठीक है. हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे भी और हम लर्न भी करेंगे कैसे एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल की जाती है, और देन अगर हमने ज़रूरत नहीं है उसकी तो उसको कैसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है. देन वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क. इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ठीक है. हार्ड डिस्क को हम ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क के कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है वो हम इस चैप्टर के अंदर लर्न करेंगे. देन वी विल डिस्कस डिफरेंट knowledge or different we can say information about virus and worm, that what is virus and what is worm and what is difference between virus and worm. And then next topic will be making backups क्या होते हैं and what is the need of backups, और operating system के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, विंडोज़ के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, ये कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे. Then at last we will learn some additional concepts of an operating system, some basic information that every student of computer science should know. वो हम जो है कुछ addition concepts के तौर पे learn करेंगे. Right. The first thing that we are going to learn
is that how to name and rename a file and folder. What is a file? ठीक है, फाइल का वर्ड आप सुनते हो, इस टर्म को आप बहुत दफ़ा सुना होगा कंप्यूटर की टर्म में, ठीक है, कंप्यूटर से रेलिवेंट आपने इस टर्म को सुना होगा. इट इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स और लेटर्स और पिक्चर्स और टेक्स्ट. इट मीन्स एक फ़ाइल, उसके अंदर जो है वो सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, उसके अंदर जो है नंबर्स भी हो सकते हैं जैसे बुलेट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल करैक्टर्स लाइक स्टार, डॉलर, डबल कोट, सिंगल कोट्स, ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं. उसके अंदर पिक्चर्स हो सकती हैं, उसके अंदर इमेजेस हो सकते हैं. तो इट इज़ एक्चुअली फाइल इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. जैसे ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, पहले मैंने इसकी प्रेजेंटेशन की फ़ाइल बनाई और देन मैं इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. सो दिस फाइल कंटेन्स करैक्टर्स, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर कई जगह नंबरिंग भी आ रही है और इसके जगह कई स्पेशल करैक्टर्स भी आ रहे हैं और इसके अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं. तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फाइल. एंड एग्ज़ाम्पल हो सकती है, जैसे ये पावर पॉइंट की फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल हो सकती है जिसके अंदर जो है किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, कोई स्टोरी लिखी हुई है, उससे रेलेवेंट पिक्चर्स जो हैं वो एंटर की हुई हैं. या पेंट की फ़ाइल हो सकती है जहाँ किसी ने कोई ड्राइंग बना के सेव की हुई है. MS एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है जिसमें किसी ने कोई रिज़ल्ट बना के या कोई भी जो है कंपैरिजन करके डिफरेंट टीम्स का या डिफरेंट कंपनीज़ का कंपैरिजन करके एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है. तो दीज ऑल कैन बी एग्जांपल्स ऑफ अ फाइल. और उसके अंदर सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं, सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं, इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ठीक है. बट व्हेन वी कंबाइन डिफरेंट फाइल्स एंड वी वांट टू पुट दैम ऑन अ one location, then it will be termed as a folder. यानी हम बहुत सारी हम फाइल्स क्रिएट करें, चाहे वो सारी MS वर्ड की हैं, सारी पेंट की हैं, जिसमें मैंने पेंट पे बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, ठीक है, या मैंने MS वर्ड के अंदर बहुत सारी जो हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करके मैंने फ़ाइल्स क्रिएट की हुई हैं, या मैंने पावर पॉइंट को यूज़ करके बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन के ऊपर स्टोर करूँ किसी एक जगह पे, ताकि मैं उनको इजीली एक्सेस कर सकूँ. तो उसके लिए जहाँ मैं इसको रख रही होती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ फोल्डर. इट मीन्स कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज़ नेम्ड एज अ फोल्डर. इसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है. और नॉर्मली येलो कलर के जो आइकन्स होते हैं विंडोज़ के अंदर, उनको भी हम फोल्डर कह रहे होते हैं. अगर पहचान के तौर पे हम कहें कि फोल्डर क्या है, तो नॉर्मली जो येलो कलर के आइकन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट तरीके से ये नज़र आ रहे होते हैं. कई जगह जो इनके अंदर की फाइल्स भी थोड़ी सी जो है एज थंबनेल्स नज़र आ रही होती हैं और कई जगह जो है ये ऐसा नहीं होता है. लेकिन जहाँ भी हम बहुत सारी फ़ाइल्स को किसी एक जगह पे, किसी एक लोकेशन के अंदर जो है कैटेगरी वाइज सेव करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ़ोल्डर हम उसको कहेंगे, ठीक है. अब एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करें कि मैं एक चैप्टर 3 की प्रेजेंटेशंस बना रही हूँ, मैं प्रेजेंटेशंस एक अलग फ़ोल्डर में रख सकती हूँ और मैं जो उन पे जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगी वो मैं एक अलग फ़ोल्डर में रख सकती हूँ, ठीक है. तो अ फोल्डर में कंटेन मोर देन वन फोल्डर्स एंड मोर देन वन फाइल्स, ठीक है. और यहाँ पे आपको फाइल्स की एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं, लाइक दिस इज़ MS एक्सेल फाइल, दिस इज़ पावर पॉइंट एंड दिस इज़ MS वर्ड, ठीक है. और ये जो है यहाँ पे ये PDF की फ़ाइल है, ये भी जो है डॉक्यूमेंटेशन या नोट्स को जो है वो अरेंज करने के लिए एक जो है फ़ाइल यूज़ की जाती है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड हियर यू कैन सी द फोल्डर्स. Next, when we create a file or when we create a folder, we must name it, ठीक है. अगर मैं कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ तो उसको एक एप्रोप्रिएट नेम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपना डेटा सर्च करूँ तो मुझे अपनी फ़ोल्डर का नाम पता होगा, तो मैं वहाँ जाके उसको सर्च कर सकती हूँ. जैसे अगर आप कहीं पिक्चर्स सेव करते हो तो आप उस फोल्डर का नाम माय पिक्चर्स रख सकते हो. देन आप उसके अंदर सब फोल्डर्स बना सकते हो, बर्थडे पिक्चर्स, पिकनिक पिक्चर्स,
या अगर आपके स्कूल के अंदर कोई पार्टी हुई है, स्कूल पार्टी पिक्चर्स, ठीक है, तो किसी भी फ़ोल्डर को, और इस तरह से अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करते हो, जैसे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, और आपने जो है वो समर टास्क के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, या आपने किसी और चीज़ के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, जैसे ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, जिसका नाम मैं रख सकती हूँ चैप्टर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और क्लास 8, राइट। तो किसी भी फाइल या किसी भी फ़ोल्डर को हम नाम ज़रूर दे रहे होते हैं, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हमें इजीली वो मिल जाए, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस फाइल या फ़ोल्डर के नेम को रीनेम भी कर सकते हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला टास्क हम परफॉर्म करेंगे या पहला प्रैक्टिकल जो हम परफॉर्म करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक फ़ाइल या फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। नेम करना तो आपको जो है वो पिछली क्लास के अंदर सिखाया भी गया है। जब MS वर्ड की फ़ाइल आपको क्रिएट करना सिखाई गई तो कैसे फ़ाइल को स्टोर करते हैं, MS एक्सेल की जो फ़ाइल क्रिएट की गई थी कैसे उस फाइल को सेव करते हैं, हम उनको रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा, लेकिन वो बच्चे जिनको अभी तक नहीं पता कि हम फाइल्स को रीनेम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या रूल्स हैं, वो हम जो हैं वो प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जो टिपिकल मेथड है या जो एक नॉर्मल मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, वो क्या होता है कि हम सबसे पहले क्लिक करते हैं उस फोल्डर के ऊपर या उस फाइल के ऊपर जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं। देन वी राइट क्लिक, वी प्रेस द राइट क्लिक ऑफ द माउस, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो उसके ऊपर भी लेफ़्ट और राइट क्लिक्स बने होते हैं, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। और नॉर्मली राइट क्लिक करने से उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है। आप राइट क्लिक करने से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लाइक फाइल को ओपन करना, क्लोज़ करना, डिलीट करना, ठीक है। उन्हीं में से क्या होता है, रीनेम का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, और देन जो आपने नाम जो रखना चाहते हैं वो रख के एस्केप की या एंटर की प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से जो है आपका फ़ाइल का नाम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। या फोल्डर को रीनेम कर रहे हो तो फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, ठीक है। बट यू मस्ट रिमेंबर देयर आर सम करैक्टर्स, और वो करैक्टर्स यहाँ पे जो हैं वो लिस्ट डाउन भी हुए हैं, जिनमें से स्टार का साइन है, डबल कोट्स हैं, ठीक है। इसको जो है फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, इसके आगे ये बैक स्लैश है, ठीक है। देन कॉलन का साइन है, क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर देन सिंगल, ग्रेटर देन एंड लेस देन के सिंबल है, ठीक है। और देन और साइन, जो लास्ट वाले इसको कहते हैं और साइन। दीज करैक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू नेम और रीनेम अ फाइल और फोल्डर। व्हाट डज मीन बाय दैट कि जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को नाम दे रहे होंगे, हम कीबोर्ड के ऊपर मौजूद जितने करैक्टर्स चाहें, जो करैक्टर्स चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी फ़ाइल का नाम जो है ऑल इन कैपिटल लिख सकते हैं, ऑल इन स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है। हम इनका कम्बिनेशन लिख सकते हैं, हम उनमें बाकी सारे करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये वाले करैक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज विंडोज़ इनको रिज़र्व करती है फॉर सम अदर स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने रिज़र्व किए होते हैं। यूज़र जो है कंप्यूटर का, वो इन करैक्टर्स को फाइल या फोल्डर को नेम देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, फाइल के अंदर लिख सकता है इन करैक्टर्स को, ठीक है। कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, कॉलन लगा सकता है फाइल के अंदर, लेकिन जब उस फाइल या फोल्डर को नेम दे रहा होगा तो वो इन करैक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकता। सो दीज करैक्टर्स आर कॉल्ड इलीगल करैक्टर्स फॉर नेमिंग अ फाइल एंड फोल्डर। यानी जब भी किसी फाइल या फोल्डर को नेम किया जा रहा होगा या रीनेम किया जा रहा होगा, दीज करैक्टर्स कैन नॉट बी यूज एंड दीज करैक्टर्स आर कॉल्ड इलीगल करैक्टर्स, ठीक है, राइट। After watching practical, what will you do that you will have to read the content that we have studied up till now, ठीक है। और आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं या इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो भी अंडरलाइन करेंगे। एंड द नेक्स्ट टास्क that will you do that you will have to write definition of operating system, और आपकी जो है वो 7th की बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी होगी, आप वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ प्रेजेंटेशन में भी इन्हें डेफिनेशन जो है वो लिख दी है, आप यहाँ से मदद ले सकते हो।
नेक्स्ट आपने फाइल और फोल्डर को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। आप फाइल की एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। आप फोल्डर को ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट फाइल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो फॉर मेकिंग योर वर्क अपीलिंग और अट्रैक्टिव। और देन एट लास्ट आपने जो इलीगल करैक्टर्स बताने हैं वो क्या होते हैं और उनकी एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। After that, you will learn how to rename a file and folder. I hope you will get the concept. Most of you know how to name or rename a file folder, but this practical especially for those students who never rename or never used how to name or rename a file and folder. जी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल आज हम करेंगे दैट इज हाउ टू नेम और रीनेम अ फाइल और फोल्डर. बिफोर स्टार्टिंग our practical, let's have a look at how folders are different from files. Here icon with yellow color in Windows is termed as folder, and a folder may contain more than one folders and files. As I open this folder, I have many other folders, और जब मैं इनमें से किसी भी एक फोल्डर को फर्दर ओपन करूंगी तो उसके अंदर भी डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे कोई येलो कलर का आइकन नहीं, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, एंड दीज ऑल आर फाइल्स. यहाँ पे जैसे ये कुछ MS वर्ड की फाइल्स हैं और ये एक्सेल की फाइल्स हैं, ठीक है. अगर हम बैक जाएंगे और मैं इस फोल्डर को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक येलो कलर का आइकन, इट मींस कि दिस इज फोल्डर, और ये बाकी तीनों हैं ये क्या है, फाइल्स हैं, ठीक है. और इस फोल्डर के अंदर डिफरेंट और फाइल्स भी या इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है. अब सेकेंडली मेरे पास चूंकि विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है तो इसका इंटरफेस इस तरह से, जिन स्टूडेंट्स के पास विंडोज 7 अभी तक इंस्टॉल है उनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इंटरफेस का मतलब ये जो डेस्कटॉप है इसकी जो लुक है कि ये कैसे नजर आता है, ठीक है. आप कैसे देख सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर में कौन सा विंडोज का वर्जन इंस्टॉल है. आप दिस कंप्यूटर या माय कंप्यूटर के ऑप्शन पे राइट क्लिक करके माउस के राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे विंडोज का वर्जन चेक कर सकते हैं. जैसे मेरे पास विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, राइट. एंड यहाँ पे इस डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर्स के अलावा और भी बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं. जैसे अब ये जो है ये भी क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है. ये जो है स्पोर्ट्स नाम का ये भी फोल्डर है, लेकिन जिनके ऊपर ये जो एरोज लगे हुए हैं ये फाइल्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्टकट फाइल्स हैं. लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो इनक्रेडिबल का है ये भी फोल्डर है, ठीक है. और इसी तरह से जो है ये होम डिजाइन ये भी क्या है, फोल्डर है. यहाँ पे डेस्कटॉप का आइकन भी है. तो जो येलो कलर के जितने भी आइकन्स आपको कहीं भी नजर आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर या आपके कंप्यूटर के किसी भी इनर ड्राइव के ऊपर, तो ये क्या कहलाएंगे, तमाम फोल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है. लेकिन इसके अलावा डिफरेंट क्या होंगे, आपके पास फाइल्स मौजूद होंगी और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू वो फाइल्स आपके कंप्यूटर में क्रिएट हुई हुई होंगी. जैसे कि ये MS वर्ड की फाइल्स हैं जो ब्लू कलर की हैं, जो ग्रीन है एक्सेल की है. इस तरह से ये पावर पॉइंट की फाइल है जिसके ऊपर प्रेजेंटेशंस आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा ये VLC मीडिया प्लेयर के थ्रू एक फाइल सेव हुई हुई है, ये जैसे मूवीज होती हैं या वीडियोस होती हैं. ये गूगल क्रोम की फाइल है, ठीक है. इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स मौजूद हैं. So this was the introduction that how files and folders look like. आप में से majority बच्चों को I hope पता होगा, लेकिन बच्चों को थोड़ा confusion थी, जिनको idea नहीं था कि folders क्या होते हैं या files क्या होती हैं, तो ये उसके लिए था. लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. जो आज हमने प्रैक्टिकल करना है वो है हाउ टू नेम और रीनेम अ फाइल एंड फोल्डर, ठीक है. तो पहले हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं. विंडोज 7 की तरह विंडोज 10 में भी हम जो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक मेथड क्या है कि हम राइट क्लिक करेंगे जहां पे हम फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है. और आपके पास न्यू का ऑप्शन होगा और न्यू में के बाद हम कहाँ जाएंगे, फोल्डर के ऑप्शन के ऊपर. जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या है, न्यू फोल्डर, ठीक है. लेट्स सी मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ टर्म 3,
ठीक है, तो इसका मैंने नाम रख लिया। ठीक है, लेकिन ये नाम रखते हुए अगर मैं क्या करूंगी कि कोई भी एक इलीगल कैरेक्टर एंटर करने की कोशिश करूंगी, जो ऑलरेडी हम अपनी प्रेजेंटेशन में देख चुके हैं। लेट्स सी, मैं स्टार का साइन एंटर करने की कोशिश करती हूँ। कीबोर्ड के ऊपर आपका जो स्टार का साइन है मैंने वो प्रेस किया है, तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज क्या आ गया, फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स। यानी ये जो कैरेक्टर्स हमने एज इलीगल कैरेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, ये क्या है, इलीगल कैरेक्टर्स है और मैं इनको यूज नहीं कर सकती इस फोल्डर के नेम में। ठीक है, इस तरह से अब जैसे मैं जो है स्लैश जो है उसको एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्लैश भी एक ऐसा करेक्टर है जो मैं नेम देने के लिए यूज नहीं कर सकती अपने फोल्डर को। ठीक है, जैसे कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है, डबल कोट्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, या ये पाइप साइन है जिसको और साइन कहते हैं। ये तमाम करेक्टर्स आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, इन करेक्टर्स को सिर्फ आप यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा जैसे मैं टर्म के बाद अगर डैश लगाना चाहूँ या माइनस लगाना चाहूँ या मैं हाइफन लगाना चाहूँ, ठीक है, इसको हाइफन भी कहते हैं और डैश भी कहते हैं, तो मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। या मैं इसके बाद जो है वो कॉमा लगाना चाहूँ और मैं आगे लिखना चाहूँ क्या, क्लास डैश 8, तो मैं लिख सकती हूँ। देखिए डैश पे मुझे कोई मैसेज नहीं आया कि ये इलीगल कैरेक्टर है, या मुझे कॉमा पे नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को नेम देते हैं तो उन कैरेक्टर्स के अलावा जिनको हमने एज इलीगल कैरेक्टर्स पढ़ा है, हम उनके अलावा कोई भी कैरेक्टर्स या कीबोर्ड की जो कीज है वो यूज करके अपने फोल्डर को नाम दे सकते हैं। आप तमाम नेम जो है वो कैपिटल में लिख सकते हो, आप सारा स्मॉल में लिख सकते हो, ये अब आपकी मर्जी है। जैसे मैं सारा जो है अब नेम जो है टर्म 3 क्लास 8, ठीक है, सारा कैपिटल में लिखना चाहते हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना चाहते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ वो चंद कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज नहीं कर सकते। दिस इज हाउ वी कैन नेम अ फोल्डर। सेकंड मेथड यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, न्यू फोल्डर का, इसको यूज करके भी हम जो है वो नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नाम क्या है, न्यू फोल्डर। ठीक है, और मैं इसको नाम क्या दूंगी, टर्म 3 क्लास 8। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, और मैंने इसमें कोई भी इलीगल कैरेक्टर यूज नहीं किया। अब अगर हमने इसको रीनेम करना, मैं चाहती हूँ कि क्लास 8 पहले आए और टर्म 3 बाद में आए, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे ये रीनेम का ऑप्शन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके या सारा भी डिलीट करके मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। क्लास 8 मैंने वैसे ही रहने दिया और इसके आगे मैंने लिख दिया क्या, टर्म 3। मैंने इसको क्या कर लिया, रीनेम कर लिया। इसी तरह से मेरे पास ये जो फोल्डर है जो टर्म 2 का, मैं उसको भी राइट क्लिक करके क्लास 8 टर्म 2, इसको मैं रीनेम कर सकती हूँ। ठीक है, और मैंने इसमें तमाम वो कैरेक्टर्स यूज किए हैं कि जो मुझे अलाउड है अपनी फाइल या फोल्डर को नेम करने के लिए। ठीक है, एक और मेथड दैट हाउ की वी कैन रीनेम अवर फोल्डर, उसका क्या तरीका है कि आप इसको क्लिक करोगे और अगर आपके पास फंक्शन की मौजूद है, FN की मौजूद है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करके आप साथ में प्रेस करोगे F2 की। ठीक है, तो आप ये देखिए इसका नेम जो है वो चूज हो गया है और अब आप इसको डिलीट करके आप इसको रीनेम कर सकते हो। मैं वही नाम रखूंगी, क्लास 8। ठीक है, जोड़ के लिखना चाहते हो, बीच में डैश लगाना चाहते हैं आप, ठीक है, जिस तरीके से टर्म 3, यानी आप F2 की प्रेस करेंगे विद कॉम्बिनेशन फंक्शन की, FN की, और इस तरीके से भी जो है आप रीनेम कर सकते हो एक फाइल या फोल्डर को। These are two methods how we can name or we can rename a file or folder. I hope कि आपको समझ आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।